जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आनੈ। पूरन प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गौड़ मड़ी मट भूल न मानੈ। तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना न एक पछानੈ। पूरन जोत जगै घट मैं, तब खालस ताहै न खालस जानੈ। पूरन जोत जगै घट मैं, तब खालस ताहै न खालस जानै। चवर छतर तख्त दे मालक, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन पवित्र दरबार दे अंदर शोभाईमान होए बैठे, हाजरियां भर रहे गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सत संगी जनो। सरबंस दानी पूरी मनुखता दे सांझे सतगुरु बादशाह दरवेश धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे पावन इतिहास नूं लड़ीवार आपां विचार रहे हां। कल दे दीवानां दे विच गुरमुखो आपां इतिहास नूं विचारदियां ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਗਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀਮਤੀ। ਚੇਤੂ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੇਤੂ ਮਸੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। और अगली बार जदों वो परिवार सतगुरु पातशाह दे कोल पहुँचता है, माता गुजरी जी नूं मिलदा है ते पता लगता भी साडी भेटा ते माता जी दे कोल पहुँची कोई नहीं। पर यह दरबार सतगुरु पातशाह नूं बेनती करदा है। पातशाह चेतू दे कोले सिख भेजदे है। पातशाह दे कोले आउण दी थां दे उत्ते आनंदपुर साहिब छड्ड के चला जांदा है, धीरमल दे कोल जांदा है। अगे धीरमल दे नाल दे बंदियां नूं ओहदा आउणा शोभा नहीं दिंदा। इस करके उत्थे फिर जिहड़ा है ओहदे शक कीता जांदा है और धीरमल और ओहदे नाल दे साथी फिर जिहड़े ने ओह करतारपुर साहिब विखे गोलियां दे नाल उहनूं खत्म कर दिंदे है। भाव के संसार तो गया ते बेमुख हो के निगुरा हो के संसार तो लालच वस चला गया। तो ये इतिहास आप जी ने कल सरवण कीता सी। आओ इत्थों ही आपां लड़ी नूं अगे तोरदे हां जी। असीस बख्शदे हां, फतेह परवानो आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण धन गुरु कलगीधर सतगुरु पातशाह ने 1698 ईस्वी नूं सतगुरु पातशाह ने जिहड़ी ब्राह्मणवाद दी रीत सी ना, एक है गुरमुखो ब्राह्मण, ब्राह्मण दा सतगुरु पातशाह ने बाणी अंदर बड़ा वख्यान कीता है, सत्कार भी दिता। पर हौली हौली जिहड़ी ब्राह्मण की एक रीत बन गई सी भी ज्ञान अपने कोले छुपा के रखना, अपने आप नूं उच्चा जानना ते दूसरियां नूं नीवां जानना ते ज्ञान छुपा के रखना।
ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 1698 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਛਹਿਰਾ ਪਹਿਨੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੋ ਜੋ ਕੇਸ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਘਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ 5 ਕਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 1699 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ 2 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਸੰਗਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਈਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਤੋ ਲਗਭਗ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ 100% ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨੇ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਣ ਭਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ। ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭਰੀ।
गुरु अमरदास साहब पातशाह ने सिखां नूं सेवा की दात बख्शी, भी सेवा किवें करनी है वो गुरु अमरदास साहब ने सिखाई। गुरु रामदास साहब पातशाह ने सिखां नूं निमरता की दात बख्शी। गुरु अर्जन देव सतगुरु पातशाह जी ने जिहड़ा सी वो सिखां नूं बाणी की दात बख्शिश की। बाणी का बोही था गुरु अर्जन साहब पातशाह कहलाई। फिर सतगुरु पातशाह ने सिखां दे अंदर कुरबानी की बख्शिश की, भी किवें शांतमई होके परमात्मा के भाणे अंदर कुरबान होया जा सकता है। एक कुरबानी दात बख्शिश की सिखां नूं। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने सानू ये बख्शिश की भी साडी निमरता नूं कमजोरी ना समझ लिया जाए। हुंदा ना कई बार निमरता नूं कमजोरी समझ लिया जाइदा, तो पातशाह जी ने फिर भगती दे नाल सिखां नूं शक्ति भी बख्शी, भी शक्ति नाल रहना है। ये परमेश्वर ने वाहिगुरु ने इंसान नूं सरदार बनाया, इन्हें सरदार बन के रहना, बादशाहां दे वांग ही रहना। गुरु हरराय साहब पातशाह जी ने शक्ति हुंदियां होइयां भी अपने आप नूं किवें निमरता दे विच रखना है, ये गुरु हरराय साहब पातशाह ने सिखाया। क्योंकि 2200 फौजां सन जिहड़ियां घोड़ सवारां दियां, वो 24 घंटे पातशाह नाल रहिंदियां सन, पर एक भी जंग नहीं पातशाह ने लड़ी। शक्ति हुंदियां होइयां भी स्वयं ते काबू किवें रखना है, ये गुरु हरराय साहब पातशाह ने सिखाया। गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह ने सानू ये सिखाया भी जिहड़ी जोत हुंदी है वो शरीरां दी मुहताज नहीं हुंदी, भी शरीर वड्डा है कि शरीर छोटा है, गल ते अंदर दी परमात्मा दी जोत दी है। जिहड़ी जोत दी महानता सी वो पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब ने सानू समझाई। गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी ने सानू त्याग दी गल सिखाई, भी मनुखी हक्कां दी राखी किवें करनी है, ते केवल अपने लिए नहीं पर उपकारी वो हुंदा है जिहड़ा परायां लई भी कुर्बानी दे सकदा है। ये पर उपकार, इन्ना पर उपकार कि पातशाह जिंदी वार गए, अपना शरीर ही वार गए। तो ये सारियां जिहड़ियां दातां सी ये गुरु साहिबाना तक सिखां दे अंदर आ चुकियां सन। सिमरन दी भावना, सेवा दी भावना, निमरता दी भावना, त्याग दी भावना, भगती दे नाल शक्ति दी भावना, रब्बी ज्ञान दियां दातां, ये सारियां दातां जिहड़ियां जिस दे नाल एक मनुख संपूर्ण हो सकता है, सारियां गुरु पातशाह ने सानू बख्श कर दित्तियां। तो जदों ये सिख दे अंदर सारे गुण भरे गए, फिर सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे ये मेरा खालसा है। खालसा एडमिशन नहीं है, खालसा रब्बी सुरत दे नाल परमात्मा विच लीन होई आत्मा का नाम है, जिहड़ी लीन हो चुकी है। ये नहीं जिहड़ी चली है समुंदर दे वल, चली हुई का नाम खालसा नहीं है। खालसा वो है जिहड़ी नदी समुंदर च डिग के लीन होकर समुंदर का रूप हो चुकी है, कहंदे खालसा है। इस करके सतगुरु जिहड़े होर धर्म सन वो आरंभता दाखले ते करदे सी, पर सिखा गुरु कलगीधर पातशाह ने कृपा की। जदों खंडे बाटे की पहल दी, पातशाह कहंदे ये आरंभता नहीं है, मैं अपने खालसे की संपूर्णता कर रहा है। ये डिग्री है, ये अंदर कोई कमी नहीं है। सिख दे अंदर, खालसे दे अंदर कोई कमी नहीं है। ये पूर्ण पुरख हो चुके हैं। प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंचक नाही भेद, परमेश्वर विच, खालसे विच ते गुरु पातशाह कहंदे मेरे विच कोई फर्क नहीं है। संपूर्णता है गुरमुखो। खालसा सिखण दा नाम नहीं, खालसा परमेश्वर रूप है परमेश्वर का। सिख तां गुरु नानक साहब पातशाह दे वेले तो सिखना ने आरंभ कर दिता सी। एक नुकता होर समझो, जदों आपां सिख दी डेफिनेशन लभदे आ ना, सिख दी डेफिनेशन असीं कहने सिखण वाला, जिहड़ा सिखण वाली डेफिनेशन है वो संस्कृत भाषा दी है। संस्कृत भाषा दे विच जिहड़ा सिख है वो सिखण वाले नूं कहा जांदा है। पर सिख शब्द है जिहड़ा ये पाली प्रकृतक भाषा दे विचों आया मनदे ने कई विद्वान। जिहड़ा पाली प्रकृतक भाषा सी, बुद्ध धर्म दे वेले दी भाषा सी जिहड़ी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सिख शब्द आउंदा है ते उत्थे सिख दा अर्थ बनदा सच दे उत्ते खड़ा होण वाला, सच दे उपर पहरा देण वाला, सच तो ना डोलण वाला, कहंदे सिख है।
तो सिख दे अंदर ये भी गुण ने, ये सच ते पहरा दिंदा है, सच ते खड़ोंदा है, सच तो डोलदा नहीं है, इस करके सिख है। तो विसाखी दा दिहाड़ा, एक नुकता होर समझो, क्योंकि विसाखी दे समाचार बड़े ने। हुण जिहड़ी गल है वो थोड़ी जी बदल गई है, पर असीं पुराने समय तो यही पढ़ते हुंदे सी भी गुरु नानक साहिब दा जो प्रकाश है वो वैसाख दे विच होया है। तुसीं कदे अज गूगल ते सर्च मारो जां श्रोमणी कमेटी दी जिहड़ी वैबसाइट है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ भी गुरु नानक साहिब पातशाह दा जो प्रकाश है वो विसाख 'ਚ ही लिखिया जाता है। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਤੇ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ। तो ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ परमात्मा की मौज। पातशाह कहते प्रगट होया है, ये बनाया नहीं गया, ये प्रगट होया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰਮਖੋ, क्योंकि गुरु नानक साहिब पातशाह दा जो प्रकाश है वो भी एक विसाख नूं मन्निया जांदा है। गुरु नानक साहिब पातशाह अपनियां उदासियां प्रचारक दौरे आरंभ करते हैं, ते जिस दिन हरिद्वार गुरु नानक साहिब पातशाह पहुंचते हैं ते उल्टे वाले पासे छिपदे वाले पासे मूँह करके पानी दिंदे ने, वो भी विसाखी वाला दिन सी। जिस दिन पहली बार भाई लहणा गुरु नानक साहिब पातशाह जी नूं करतारपुर मिलदे ने, वो भी विसाखी वाला दिन सी। गोविंदवाल साहिब की धरती दे उपर जदों गुरमुखो बौली बनाई जाती है तो पहले दिन बौली च पानी भरिया जाता, कड़ तोड़िया जाता है, वो भी विसाखी वाला दिन सी। जदों गुरु हरकृष्ण साहिब सतगुरु पातशाह अपने कीरतपुर साहिब तो चलते ने ते अंबाला पहुँचते ने, ते पातशाह जी ने एक छज्जू चीवर नाम के सिख के सिर के उपर छड़ी रख के गीता के अर्थ करवाए सी, वो भी विसाखी वाला दिन सी। जदों गुरु हरकृष्ण साहिब सतगुरु पातशाह बाबा बसै ग्राम बकाले ये बचन करते ने, वो भी विसाखी वाला दिन सी। इस करके विसाखी का इतिहास है जिहड़ा वो खालसा साधना तो पहले ही बहुत वड्डा सी। इस करके गुरु नानक साहिब का प्रगट दिहाड़ा भी विसाखी नूं सी। गुरु अमरदास साहिब पातशाह जी ने कड़ तोड़िया विसाखी नूं, इस करके बहुत सारे जिहड़े सन वो इतिहास साके विसाखी वाले दिन होए। ते जे गुरु नानक साहिब पातशाह विसाखी वाले दिन प्रगट हुंदे ने ते गुरु कलगीधर पातशाह ने खालसी नूं भी विसाखी वाले दिन प्रगट किया। तो विसाखी वाले दिन इतिहासकार कहंदे 80,000 का इकट्ठ होया। सतगुरु पातशाह ने एक वड्डी स्टेज सजाई, उच्ची थान दे उपर तंबू लाया गया। 80,000 दियां संगतां सामने खुले मैदान दे विच खड़ियां सन। सवेरे आसा की वार दा कीर्तन हुंदा है। आसा की वार दे कीर्तन की संपूर्णता तो बाद धन गुरु कलगीधर पातशाह अज चेहरे उत्ते सूरज वांग तपदा जलाल, हथ विच नंगी पकड़ी हुई शमशीर तेग ते पातशाह उच्ची स्टेज दे उपर आउंदे ने। आके सतगुरु पातशाह सिखां दे वल वेखदे ने। अज पातशाह दा चेहरा लाल सी, सूरज वांग भखदा पिया सी। अज सतगुरु पातशाह किसे रब्बी जोश विच लग रहे सन। सिख पातशाह नूं देखदे ने, नंगी तलवार हथ विच पकड़ी हुई है। तो गरजवी आवाज़ सतगुरु पातशाह ने कहा, सिखो अज सानू एक सीस की लोड़ है। कि कोई किहड़े सिख ने जिहड़े अज सानू सीस भेट करनगे। दो इन्ना बचन कहा तो गुरमुख बहुतियां सिखां नूं गल समझ ना पई। जदों पातशाह ने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, तो फिर उसे समय लाहौर दे रहन वाले भाई दया राम सतगुरु पातशाह दे सामने उठ के खड़े हो जाते हैं। सतगुरु पातशाह सिर हाजिर है, पर मैनू बख्शियो जे मैं तुहाडे पहले बचन दे उपर खड़ा नहीं हो सकिया। मैं सोचण लग पिया, इस करके पातशाह ये मेरी माफ़ी है, आप कृपा करो। आपने ये शरीर बख्शिया है, आपने सुमत बख्शी है,
इस करके आप इस सिर प्रवान करो। सतगुरु पातशाह दयाराम स्टेज के उपर आउंदा है। पातशाह दयाराम की बांह पकड़ते ने, पकड़ के पातशाह तंबू के अंदर लै जाते हैं। इत्थे एक नुकता समझो जे, कुछ विद्वानां ने यह लिखिया होया, केवल गल पर इदां नहीं कही कहानी नहीं है, कुछ लिखते ने जी इदां। शीतल जी ने लिखिया होया इदां, वो कहंदे अंदर पातशाह ने बकरे बन्ने हुए सी, पर इदां नहीं है, क्योंकि सतगुरु पातशाह ने तंबू लाया, तंबू सिखां दे कोलों पड़दा रखिया, तो सिखां दी परीक्षा हो रही है। हुण वो पेपर लैण वाला ही किहड़ा जिहड़ा अपने सिखां नूं परीक्षा दस देवे भी आह हुण पेपर आएगा। परीक्षा तो हुंदी हो जी, पता ना होवे ते इह परीक्षा पाउण वाले दी मर्जी हुंदी है, वो परीक्षा किन्नी क सौखी पाउंदा किन्नी क औखी पाउंदा है। इस करके इन्ना ही है बस कि सतगुरु पातशाह भाई दयाराम नूं अंदर लैके गए, अंदरों तेग चलण दी आवाज़ आई, बस अंदर की होया की नहीं होया कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ते जे ये गल गुरमुखो गुरु ने साडे तो पासे रखी है, तो फिर सानू तंबू चक चक वेखना भी नहीं चाहिए भी अंदर की सी। ये तो गुप्त रखी पातशाह जी ने परीखिया। अंदर लै गए पातशाह, तेग चलण की आवाज़ आई, तो सतगुरु पातशाह बाहर निकले, तो जिहड़ी वो शमशीर सी उहदे उत्ते लहू दियां बूंदां धरती ते डिग रही सन। पातशाह ने फिर गर्जवी आवाज़ विच कहा, एक सीस की होर लोड़ है। इस वार दूजी वार दिल्ली के रहने वाले भाई धर्मदास उठ के खड़े होए, पातशाह इस सीस आप जी के दर ते भेंट है, प्रवान करो। पातशाह फिर लै गए, फिर उही कौतक वरतिया, फिर आए तीसरी वार गुरमुखो जगन्नाथपुरी के रहने वाले हिम्मत राय पातशाह के सामने हाजिर होए। अंदर लै गए पातशाह, फिर तलवार चलण का खड़का हुंदा है, सतगुरु पातशाह तलवार लैके बाहर आ जाते हैं। इत्थे इतिहासकार कहते हैं कि जो इदां होया तो सिखां नूं बैठिया सामने बैठिया लग्या भी सतगुरु पातशाह सिखां नूं मार रहे अंदर जाल जाके। अंदर की है ये तो गुरु जानदा है, पर बाहर बैठा नूं लग्या। माता गुजर कौर दे कोल भी गए, माता जी अज पता नहीं सतगुरु पातशाह नूं की हो गया, अंदर लजांदे ने, अंदरों तलवार चलण की आवाज़ आउंदी है, पता नहीं अंदर की हो रहा है, पर सानू डर लगता है, इस करके आप चलो ते गुरु साहब नूं रोको। माता गुजरी जी ने सिखां की गल सुनी, पर वो जानते सन गुरु नानक साहब की जोत है। इस करके पातशाह माता ने कहा, भाई सिखों गुरु साहब के कौतक होणगे, गुरु साहब ते भरोसा रखो, गुरु तां जिंदगियां जीवन बख्शण वाला है। बस इन्ना ही कहा, गुरु ते जीवन देन वाला है, बख्शण वाला है। इन्ना बचन कहा, माता दी चुप कर गए। चौथी बार इतिहासकार कहंदे पातशाह ने सीस मंगिया, ते उसे समय फिर द्वारका दे जिहड़े सन भाई मोहकम चंद जी, ये द्वारका गुजरात दे रहने वाले सन, इन्हां ने सीस भेंट किया। हुण गुरमुखो एक एक नुकता समझो, किन्ना औखा जा होवेगा वो समा जदों ये पता है भी अंदर पता नहीं की हो रहा है, पर सानू लग रहा भी सीस पातशाह वढ़ रहे हैं। तो तुसी देखो किन्नी भावना होएगी, किन्ना भरोसा गुरु साहब के उत्ते होवेगा भी नहीं की हो गया जी सीस भेंट करना पै गया, तो दे रहे हैं पातशाह नूं सीस। क्योंकि सीस तो उस दिन ही भेंट हो गया सी जिस दिन गुरु के चरणों में आके गुरु के चरणों में ये सीस रखिया सी, ये मस्तक रखिया सी, सीस ते उस दिन ही गुरु नूं भेंट कर दिता सी। पंजवीं बार पातशाह ने फिर जिहड़ा है उस सीस की मंग की। इस बार बिदर करनाटका के रहने वाले साहिब चंद ने पातशाह जी नूं सीस भेंट की। वारी वारी पातशाह अंदर लै गए। अंदर काफ़ी समा चुपचाप इदां सुनसान छाई रही, पता नहीं लग रहा सिखां नूं की होया। कुछ समय तो बाद फिर सतगुरु पातशाह पहला आप निकलते ने, ते आप निकलते ने पिछे पिछे फिर वो जिहड़े 5 सीस भेंट करन वाले सन, हुण उन्हां दे कपड़े भी होर पहने ने, दस्तारां भी सिर ते होर बन्नियां होईयां ने, ते सतगुरु पातशाह दे पिछे पिछे आके खड़े हो गए। सारी संगत हैरान सी, ये पातशाह ने की कौतक वरताया। तो सतगुरु पातशाह ने कहा, भाई सिखो ये मेरे प्यारे ने,
अज तो बाद एक खालसा हो गए ने, ते जिहड़ा अज गुरु नूं सीस भेट करेगा वह खालसा पवाएगा। पातशाह जी ने फिर गुरमुखों बाटा मंगाया, खंडा मंगवाया, सतलुज दरिया का पानी मंगाया, ते सतगुरु पातशाह ने पंजां नूं अपने आले दुआले बिठाया। फिर पातशाह जी ने बाणियां दा जाप खंडियां घमाउंदियां होइयां बाणियां दा जाप किया। अज दी मर्यादा के अनुसार 5 बाणियां जो पढ़ियां जांदियां ने उन्हां दा जाप होया। एक एक नुकता होर समझो जी। हुण देखो गल कल्ले पानी दी नहीं है, गल बाणी दी है। गुरमुखो ये पातशाह ने समझाया सी सानू सिखा, ये गल चेता रखी, बाणी दे विच ही इन्नी ताकत है, वो पानी नूं भी अंमृत बना दिंदी है। ते इस बाणी ने तेरी जिंदगी नूं अंमृत करना है। मता समझी कि तू बाणी तो बिना अंमृत वेला, जे वेला तो वेला ही है, जे वेले सिर सिख बाणी पढ़दा ते अंमृत बाणी वेले नूं भी अंमृत वेला बना दिंदी है। वेला भी तां है, अंमृत वेला तां ही अंमृत है जे तू अंमृत बाणी पढ़दा है। ते कल्ला पानी नहीं, पानी उपर भी बाणी पढ़ी जाती है ते अंमृत बन जाता है। ते जे तू जिंदगी च बाणी पढ़ेगा तेरी जिंदगी अंमृत बन जाएगी। जिंदगी नूं अंमृत बाणी नहीं करना है। गल गुरमुखो कल्ले खंडे दी नहीं, कल्ले बाटे दी नहीं, कल्ले पतासियां दी नहीं, गल बाणी दी है कि बाणी पढ़ी गई। ये नुकता ध्यान ना रखना है। इतिहासकार कहते ने माता जीतो जी नूं सतगुरु पातशाह ने स्टेज ते बुलाया और पतासे पाउण दी जिहड़ी सेवा है वो माता जीतो जी ने की। अच्छा, कई बार सानू ये लगता है, कुछ इतिहासकार भी माता साहब कौर ने पतासे पाए। नहीं नहीं नहीं, माता साहब कौर दा विआह गुरु कलगीधर पातशाह नाल खास हजरां तो बाद विच हुंदा है। माता दी चढ़ाई कर जांदे ने, माता जीतो दे अकाल चलाने तो भी बाद 1 साल बाद फिर माता साहब कौर दा विआह गुरु कलगीधर पातशाह नाल हुंदा है। माता साहब कौर दी आमद ही गुरु घर विच 2000 ये कह लो भी 1700 दे विच हुंदी है। 1.5 साल बाद लगभग समा बनता है। तो इस करके पतासियां दी जिहड़ी सेवा है वो माता जीतो जी ने की। फिर सतगुरु पातशाह ने उन्हां 5 सिखां तो आप अमृत दी दात लई, भाई सिखो ये तुसी मेरा खालसा हो, ते ये खालसा मैं नहीं साजिया, ये खालसा वाहिगुरु ने साजिया है। ते फिर सतगुरु पातशाह ने उन्हां 5 नूं कहा, हुण तुसी मैनू इस पाहुल दी दात बख्शिश करो। फिर पातशाह जी ने कहा, ये जिहड़े 5 ने, सतगुरां ने फिर रहत मर्यादा समझाई, उन्हां कोलों खंडे बाटे दी पाहुल उन्हां नूं बख्शिश कीती। फिर गुरमुखो खंडे बाटे दी पाहुल पातशाह जी ने आप लई उन्हां 5 दे कोलों, और फिर पातशाह जी ने सी उस सिखां नूं मर्यादा समझाई। 4 कुरैतां सन जिहड़ियां पातशाह ने कहा, केस 4 कुरैतां केस नहीं कटाउणे। ये नहीं पातशाह ने केस रखने ने, की कहा केस नहीं कटाउणे, क्योंकि जिहड़ा 2-2 इंच दे रखी बैठा, रखे तो उसने भी हैगे ही है, कह रहा हाँ जी रखे तो मैं भी है, छोटे रखे आ, पर बंदा कह सकता सी ना इदा। तो पातशाह कहते नहीं, केस नहीं कटाउणे, पहला हुक्म किया। दूजा, कुठा मांस नहीं खाना। कुठा मांस खाण का अर्थ सी गुलामी स्वीकार करनी, क्योंकि मुसलमानी तरीके ना बनता सी। इत्थे इत्थे कई बार हो जाता मांस नहीं खाना, नहीं, जिन्नी गल है उन्नी करिए, ना उदू वध करिए ना उस तो घट करिए। जिन्नी पातशाह ने समझाई, कुठा मांस नहीं खाना, क्योंकि अभाखा कुठा बकरा खाना चौंके उपर किसे ना जाना, ये गुलामी की निशानी सी कि असी अर्थ ये मांस खाण की मनाही भी क्यों की, क्योंकि मुसलमान अपने तरीके नाल वढ़दे सी, इदां जिहड़ा सी ओहनूं नाल नाल छुरी चलाउंदे सी, नाल नाल कलमा पढ़दे सी, तसीहे दे के बकरे नूं मारिया जांदा सी, जीव नूं ਉਹਨੂੰ मार के फिर अपने तरीके नाल छकाउंदे सी लोकां नूं। ते पातशाह कहंदे सन भी जिहड़े तरीके नाल असीं बनाया उही तुसीं खाओ, ये गुलामी की निशानी सी। इस करके पातशाह कुठा मांस नहीं खाना। तीसरा जो पातशाह जी ने कहा, कहने लगे तंबाकू नहीं वरतना, तंबाकू की वरतों नहीं करनी। ते चौथा पातशाह ने कहा, किसी भी सिख ने पर नर ते पर इस्त्री गामी
नहीं होना। ये 4 कृतां बख्शियां जी। अच्छा कई बार इदां हुंदा है, आपां जिवें आपां 5 ककार पातशाह जी ने सिखां नूं फिर बख्शे भी ये 5 ककार हर एक सिख दे लई जिस जिहड़ा खंडे की पाहुल लवेगा उहनूं ये 5 ककार जरूरी ने। पातशाह ने जरूरी कीते। सिख पहलां भी 5 ककार पहनदे सन पर हुण पातशाह ने जरूरी कर दिते। जिहड़ा खालसा है खंडे बाटे दी पाहुलिया है उसनूं पातशाह ने कहा 5 ककार जरूरी हैं। अच्छा इत्थे कई बार हुंदा है भी जिवें आपां गुरमुखो किरपान कई बार शरीर तो वक्खरी हो जाती है, कहना जरूरी है। किरपान शरीर तो कई बार वक्खरी हो जाती है, कई बार तन तो कशहरा वखरा हो जाता है, कई बार हो जाता है जी मनुख। असीं कहना टुट गया जी अंमृत भंग हो गया, इदां दा भरम नहीं करना। ये नुकता समझो बड़े ध्यान नाल। इदां दा जे ककार ने जिहड़े वो शरीर तो एक हुंदा जान बुझ के करने, वो तो गल ही वखरी है, गुनाह है ही है। एक हुंदा अणजाणे दे विच भरम भुलेखे दे विच ककार दूर हो जाते ने, उहदे विच कोई भरम नहीं करना। हाँ ये हो सकता है भी चलो साडा डर है जिहड़ा वो उदां दा भै भावनी बनी रहे, अरदास करा के गुरु पातशाह च पहन लेने चाहिए ने। भरम नहीं करना भी अंमृत नहीं इदां अंमृत नहीं टुटदा हुंदा। अंमृत अंदर दी अवस्था है, अंमृत सतगुरां दी बख्शिश है। इस करके ये भरम नहीं करना, क्योंकि जदों भी कदे तुसीं देखो कई बार साडे बाबे रौला पाउंदे आ, पर आप जदों कनेडा अमरीका जांदे उदों किरपान ला के बैग च पा लैंदे आ, पाउंदे आ, सारे पाउंदे आ। भावें अकाल तख्त जथेदार आ जिहड़ा वो भी विदेश विच जांदा है, किरपान उहनूं भी लाउणी पैंदी है। इस करके ये भरम नहीं करना। हाँ यतन यही करना है भी एक बार ककार पहनिया होया वो जिउंदे जी चलते हुए स्वास शरीर तो वख ना होवे, ये सिख ने यतन करना है। फिर पातशाह जी ने जिहड़ा सी गुरमुखो 20 लगभग 80,000 का इकट्ठ सी ते 80,000 के इकट्ठ विचों 20,000 सिखां ने पहले दिन अखंडे बाटे की पाहुल जिहड़ी सी वो प्राप्त की है। पर पातशाह जी ने विसाखी वाले दिन होर किहड़ियां बख्शिशां सिखां नूं कीतियां, ये इतिहास इत्थों ही आपां कल नूं अगे लैके चलांगे जी। भुल्लां चुक्कां दी खिमा फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगतां नूं थोड़ी कुर्सियां की समस्या आ रही है ना, थोड़ी आउणी भी है, पर चलो यतन करो जिद्दां दा भी माहौल बनिया उस माहौल के अनुसार आपां जिहड़ा है वो यतन करिए भी इन्हां गल्लां नूं बहुतियां महसूस ना करिए ते गुरु पातशाह अगे ये अरदास करिए भी पातशाह सानूं सेहत ही एडी सोहणी बख्श, साडे दुख रोग कट ते असीं आप दे चरनां विच बच्चिआं दे वांग बैठ सकीए। ये अरदास आपां करिए, गुरु पातशाह किरपा करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।